کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضامندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے؟ کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا؟ اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں، پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے، وہ ماتحت ادارے کی شکل اختیار کر لے، یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک 3 جلسے کیے، 3 عوامی اسمبلیاں کی ہیں، اور عوام کا جو اس پہ رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افزا تھا، اور انشاءاللہ آپ 1 جون کو مظفر گڑھ میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے، کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ موجودہ حکومت کی عمر سر آپ کتنی دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کی سر عمر کتنی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ، برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو بالادست ہونا چاہیے، آئینی اداروں کو بالادست ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو، بیک وقت 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب، بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بات چیت کرنے جا رہی ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک کے ساتھ اسی طرف ڈگر پہ چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ، تو کامیاب تحریک نظر نہیں آتی؟ کیونکہ اصل میں اسی میں مولانا صاحب ایڈ کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کی ضمانت لے لی گئی ہے، تو اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کو اختیار حاصل ہے، اس میں میں خود تو مدعی نہیں ہوں اس کے خلاف۔ لیکن جو مفاہمت چل رہی ہے اندرون خانہ آپس میں اسلام آباد میں بات، اندرون خانہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو مجھے بھی فراہم کر دینا، میں شکر گزار رہوں۔ مولانا صاحب، اگر آپ الیکشن جیتے تو پھر جیتتے ہیں تو پھر صحیح تھا الیکشن، یا اب اس میں پچھلی دفعہ نہیں جیتا تھا، اب کہ جیتا ہوں، یہ مد نظر رہے۔ مولانا، آپ کے شہر سے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کے بنائے گئے ہیں، اتنا اہم شہر آپ کا ہو گیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ صدر پاکستان، میرے خیال میں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ دونوں بڑے منصب لے رہا ہے، اور ایک صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ میرے حلقے سے، جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں۔ جب حکومت سازی ہو رہی تھی جی، جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل الیکشن کے بعد، تو کسی اسٹیج پہ آپ کو بھی صدر پاکستان کی آفر ہوئی تھی؟ صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتی تھی، یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پالیٹکس کروں کہ جس میں ہم آفرز کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں گے۔ کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت کا آفر کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم کا آفر کرتا ہے؟ ہوتا کون ہے جو مجھے وزیر اعلیٰ کا آفر کرتا ہے؟ عوام اگر مجھے ووٹ دے گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا، میں وزیر اعظم بھی بنوں گا، میں چیف منسٹر بھی بنوں گا، اور وہ میرا آئینی اور قانونی استحقاق ہوگا، اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے، اور یہ کہ 5 سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں، یہ کوئی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی پھر جی۔ کسانوں کا بڑا ایشو چل رہا ہے، کسانوں کو آپ اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، کیونکہ کسانوں کو اس دفعہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے، گندم نہیں خریدی گئی حکومت کی جانب سے، کسان بیچارہ سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ ہیں، بہت مظلوم ہے اس وقت، خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے، یعنی آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، پھر آپ نے 35 لاکھ ٹن کیوں منگوایا؟ جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی برداشت کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا، تو کدھر جائے گا یہ؟ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت، اس کا پوچھ گچھ بھی ہونا چاہیے نا، یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان
पर जुल्म हो गया, अब किसान के रोने में हम उनके साथ शरीक हो जाएं, किसान के एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हो जाएं। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? सर अवाम के पास आप जा रहे हैं, सर मुख्तलिफ आप जलसे कर रहे हैं, ये बताइए कि सर माजी के तनाजुर में आपने कोई टारगेट भी सेट किया, क्या अचीव करना चाहते हैं सर माजी के तनाजुर? हजरत, जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज भर भर के जा रहे हों, असेंबलियां बिक रही हैं और कैंडिडेट्स बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी? हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं? इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामलात को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क में। मौलाना साहब, आलमी जो सियासत है उस पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आज से 2 रोज़ और इंडिया ने ईरान की चाबहार जो पोर्ट है उसका 10 साल के लिए जो है वो ले लिया, उसका कब्जा लिया है और 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं, जबकि अमेरिका ने हमें तो मना किया पाबंदी की वजह से कि आप अपनी गैस पाइपलाइन आगे नहीं जा सकते, कोई तजारती वादा नहीं कर सकते, तो इस दौर में इंडिया का उसके साथ वादा और 10 साल के लिए? हाँ, एक तल्ख सवाल है जो आपने किया है और दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहिदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए और बैनुल-अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफगानिस्तान के साथ भी झगड़ा और जाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग जोरावर हैं। ना हक पर होती हुई भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि वाखान के रास्ते से अफगानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ और चाबहार में जाके पहुंच जाएगा जी। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको मुतबादल रोजगार नहीं दिया जा रहा और उधर से उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इस वक्त अंगूर अड्डा के ऊपर जो वाना से जाता है अफगानिस्तान में रास्ता, वहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। गुलाम खान के ऊपर जो मीरान शाह से जाता है खोस की तरफ, वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं। आपके जमरोद पर लोगों ने धरने दिए हुए हैं। तो हमने तो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आने वाले मुस्तकबिल में कि अगर ये सीपैक खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान के रोड से लेकर गवादर तक जाता है तो 9 गेटवेज हैं जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते से वस्त एशिया का रास्ता दिखाते हैं और पूरे वस्त एशिया जो है आपकी तिजारती आमाजगाह बन जाती। लेकिन हम उसी अफगानिस्तान के साथ मामलात में उलझ रहे हैं। सरहदात हमने बंद कर दिए हैं। अगर मसला दहशतगर्दों का है, क्या चीन को यह एतराज़ नहीं है कि और तुर्किस्तान की जो तहरीक है उसके लोग अफगानिस्तान में हैं और इनके लोग जो है वहाँ चीन में जो है कार्रवाइयाँ करते हैं? ये शिकायत तो चीन को भी उनसे है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मार्केट है उस पर चीन कब्जा कर रहा है, रूस वहाँ कब्जा कर रहा है। और हम इतने पड़ोसी होते हुए और 20 साल तक हमने जिस उम्मीद पर तालिबान को गिलाफ के नीचे सपोर्ट दिया, आज सब कुछ हम ज़ाया कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लड़ाई की सलाहियत है। क्या मुल्क को तरक्की देने के दिमाग ख़त्म हो चुका है? क्या मुल्क की तरक्की के पहलू जो है वो हमने नज़रअंदाज कर दिए हैं? सिर्फ लड़ने का पहलू रह गया है। ये इसलिए
کہ جب आपका बाइख्तियार इदारा जंगजू इदारा होगा और जिसकी तरबियत दुश्मन से लड़ने की होगी, वो कभी भी आपकी सियासी क़यादत नहीं कर सकता, वो कभी भी आपकी माशी क़यादत नहीं कर सकता, उसका ये मैदान ही नहीं है सिरे से जी। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त घाटे का सफ़र कर रहा है, उसका घाटे का मुस्तकबिल है और क्या जाने, लेकिन हम अपनी आवाज़ जो है इस हालात अच्छा में। सर, आपकी जो तहरीक है वाकई इलेक्शन ज़्यादा इलेक्शन के खिलाफ है या किसी की एक्सटेंशन के लिए, या किसी की एक्सटेंशन के लिए? ये आपके सहाफ़ियाना बातें हैं, आपस में गपशप लगाया करो कभी अपने दफ्तर में, कम से कम मुझ जैसे आदमी के सर, सही ये सवाल बता तो दीजिएगा कि हुकूमत इस वक्त मुसलसल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि तिजारत बेहतर हो रही है, मुआशी इशारिये जो है वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, तो आप इस पे कैसे नजर, खुसूसन पंजाब में सर देखिए सूरत-ए-हाल क्या है? देखिए, हुकूमत हो तो इसका जॉब होता है, अपना जॉब का एहसान हम पे न डालें जी। इंटेलिजेंस है तो उसका इंटेलिजेंस उसका जॉब है, उसका कोई डिप्लोमेट है तो डिप्लोमेसी उसका जॉब है, हुकूमत है तो हुकूमत उसका जॉब है। तो ये उतार चढ़ाव उसके मामूल के मामलात में चलता रहता है, लेकिन मजबूरी तौर पर देखना है ना हमने कि क्या आपके मुल्क में माजी की कोई ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि जो हम आगे ले जाकर उससे मुल्क को बचाएं और ताकतवर बनाएं। क्या आज हमने कोई तवील मुद्दत ऐसी पॉलिसियाँ दी हैं कि हम अपना बजट आगे बना सकेंगे? हमारा बजट इस वक्त FATF के हाथ में है, IMF के हाथ में है, वर्ल्ड बैंक के हाथ में है। उन्हीं लोगों ने आपके बजट बनाने हैं और उनको सिक्योर कर रही है हमारी फौज, वो तहफ़्फ़ुज़ देगी उनको और असम्बली भी बस होगी और कानून साज़ी करेगी। अच्छा मौलाना साहब, इस तहरीक के वसीतर मफाद में आप इमरान खान साहब से भी मिल सकते हैं या उनको शामिल होने की दावत दे सकते हैं? देखिए, हर चीज़ बावकार अंदाज से हो, इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मद्दे मुकाबिल रहे हैं और हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको अगर दूर किया जाता है तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। हम कोई मुस्तकिल झगड़े और जंग और तलखियाँ उसको बाकी रखना न मुल्क के मफाद में समझते हैं न हमारी सोसाइटी के मफाद में है। आपकी तरफ से सर ऑफर होगी इमरान खान के लिए? जी, आपकी तरफ से सर ओपन है इमरान खान के लिए? सर ये जरा वाज़ेह कीजिएगा। क्या? कोई अगर आपको जरूरत पड़ती है या आप हजरत मेरे पास उनके 2 वफूद आए हैं, उसके बावजूद उनके लोग जो हैं वो मुझे मुसलसल मिल रहे हैं, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं या मीडिया के सामने मिल रहे हैं तो मिलते हैं, और यही गुफ्तगू चल रही है कि हम किस तरह आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए माहौल बनाएं। मौलाना साहब, एक है कि आपका जो भी मौक़िफ़ होता है वो बड़ा तहरीक चलाने जा रहे हैं धांधली के खिलाफ, क्या आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ एक आवाज उठाई कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इसका निशाना बनाया गया आपको जो इलेक्शन हराया गया जिसके खिलाफ आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं? ये तो तज्ज़िया करना पड़ता है। क्या अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया अमेरिका के लिए वाकई काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि वो हर कीमत पर उनको कमज़ोर करने में दिलचस्पी रखते हैं और कमज़ोर करने के लिए उनके पास पाकिस्तान जैसा मुफीद टूल और नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हमास की बात करते हैं, अमेरिका और मगरब की नज़र में वो एक दहशतगर्द तंजीम है। अमारत इस्लामिया भी अभी तक उनके नज़दीक दहशतगर्द तंजीम है, अभी वो ब्लैक लिस्ट से नहीं निकले हैं जी। अब जब मैं उनके पास जाऊँगा और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जाऊँगा या मैं जाऊँगा और फ़िलिस्तीन के साथ यकजहती के लिए मैं जाऊँगा, तो ये उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो उसके बिल्कुल मुतसादिम है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत पर जब अमेरिका असरअंदाज होगा तो ये चीज़ें जो हैं आप उसका तज्ज़िया करें कि क्या हमें नुकसान पहुँचाने में उनका बेनिफिट है या नहीं। मौलाना साहब, हुकूमत भी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही है, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। तो अगर हुकूमत ग्रैंड डायलॉग को आगे बढ़ाती है तो आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ तहरीक इंसाफ से बात करेंगे? देखिए, इस पे ज़रा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हर बात वक्त से पहले कहना ज़रा मुनासिब नहीं। मौलाना साहब, जैसे भी आपने फरमाया कि 10-12 साल की तलखियाँ थी और अब आप सियासी तौर पे कह रहे हैं कि सियासी लोग दरवाजे उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में मगरबी तहजीब को फ़रोग़ दिया जा रहा है
اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے, مجھ سے بات کی جائے. سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے, تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یہاں مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے, یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں. اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں, اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا, اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ. بہت شکریہ. عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت جو چل رہا ہے, آپ عدالتوں میں نہیں گئے, پی ٹی آئی عدالتوں میں گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور آپ ایک عوامی جو ہے عوام سے رابطے میں ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام میں کوئی انصاف ملے گا جو لوگ عدالت میں گئے ہوئے ہیں الیکشن کے خلاف؟ حضرت ہمارے ہاں ساری چیزیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں. کسی محکمے میں ایک اچھا افسر آ گیا, اس نے 2-3 سال اس محکمے میں گزارے اور اچھی کارکردگی دکھائی, وہ کمال کر دیا. کوئی منسٹر اچھا آ گیا, ایک پارٹی کا منسٹر ہے, بہت دیانتدار آدمی ہے, اس نے اچھی کارکردگی دکھا دی. ہم کہتے ہیں زبردست ہو گیا, میری حکومت میں دیکھو آپ نے کیا دیکھا جی. یہ سب عارضی ہوتے ہیں جی. عدالت بھی ایک جج آتا ہے, وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ عدلیہ ٹھیک ہو گئی ہے, وہ جج ٹھیک ہے. مجموعی طور پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عدلیہ قابل اعتماد ہے, کیا آپ کی عدلیہ عدالت عظمیٰ اس کا کوئی ایک فیصلہ دنیا کی دوسری دنیا میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں ججوں کے سامنے اپنے ملکوں میں, کیا آپ کے ملک کی عدالت کا کوئی فیصلہ بطور نظیر مثال پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جی. تو اگر پاکستان کے فیصلے اور عدالتوں کے فیصلے دنیا میں کسی کورٹ میں بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مجموعی طور پر ہمارے ادارے کتنے گر چکے ہیں اور اپنا اعتماد کھو چکے ہیں.